continue like they did by not regretting the use of foul language against the mother or late mother of Prime Minister Modi, then we know where the discourse is headed. In fact, the minister is going to join us to present his side. Jharkhand Minister Irfan Ansari. Let's begin with the headlines. Minister Irfan Ansari of Jharkhand stirs controversy with a warning to the BJP, says, call us Bangladeshi and we will dig your grave. Congress President Mallikarjun Kharge slams farmers who had come to him complaining about their destroyed crops. Prime Minister Modi to visit flood-hit areas in Punjab on September 9. Prime Minister to interact with the farmers affected, particularly in the Gurdaspur district. PM also presents himself at the BJP MP's workshop, the Sansad Karyashala at the Parliament. Prime Minister likely to be, or was in fact, felicitated over GST reforms. Trinamool MLA Abdur Rahim's shocking remarks gives open threat to BJP MLA of pouring acid in his mouth. BJP hits back, calls TMC violent party. All right, friends, Jharkhand Minister, whom we are focusing on, Congress leader Irfan Ansari, he is Minister of Health there in the state government of Jharkhand Mukti Morcha in alliance with the Congress party. He has stirred a controversy with a warning to the BJP saying, call us Bangladeshis, we will dig your grave. He was making a speech in his constituency, and he, while giving that speech, targeted BJP for its campaign on infiltrators. He said that if they are called Bangladeshis, the BJP's grave and their leaders' graves would be dug in Jharkhand. This statement comes after Trinamool MLA Abdur Rahim's shocking comments, where he gave open threat to one BJP MLA of pouring acid in his mouth. What's this politics and political discourse is we're going to focus on. Irfan Ansari joins us, but let's listen to first the comments that he has made. कहता है बांग्लादेश भेज देंगे। अरे ओ भाजपा वाले द्वारा इरफान अंसारी को कब्र खोद देगा जाता है, पहचानता नहीं इरफान अंसारी को। हम लोगों ने झारखंड लिया है। अभी क्या बांग्लादेश, क्या वो जामताड़ा में बांग्लादेशी घुस गया, मधुपुर में घुस गया, कोटा में घुस गया, साहिब कहीं कोई बांग्लादेशी नहीं है, कहीं कोई घुसपैठिया नहीं है। ये लोग समाज को तोड़ना चाहता है, समाज में तोड़ने का एक्सपर्ट है ये लोग। स्कूल खोलना है, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना है, मेडिकल कॉलेज खोलना है, बच्चे को, जो बच्चे पैसा नहीं है, माँ बाप को पैसा देकर हम लोग पढ़ाना है और समाज में नाम रोशन कराना है, ये जवाबदेही हम लोगों की है। आज स्वास्थ्य मंत्री बना हो तो हमको लगता है जनता का इलाज कम करेंगे, पहले भाजपा का इलाज ज्यादा करेंगे। All right, the Jharkhand Minister Irfan Ansari joins us. Irfan Ansari जी, आपने शुरुआत अच्छी करी अपनी स्पीच में, शिक्षा पर आपने बात करी, लोगों के स्वास्थ्य पर बात करी, और फिर सडनली आप बीजेपी पे चले गए, कब्र खोद देंगे, इस तरह की भाषा का प्रयोग, ये अच्छी बात है क्या? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल की ओर से तमाम जनता से मैं आग्रह करना चाहता हूँ। देखिए, मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ और एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिली है। एज ए हेल्थ मिनिस्टर मैं हूँ झारखंड में, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलाप से मैं काफ़ी आहत हूँ। नॉट ओनली मी, इंटायर होल झारखंड। अब बताइए, हम एक बच्चे के कार्यक्रम में गए थे, वहाँ पर हमको बच्चे बोल रहे हैं कि सर हम लोग को गोली मार दीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को, हमारे दिमाग में जहर घोल रही है। हमें बांग्लादेशी बोलते हैं बच्चे लोग, हमें घुसपैठिया बोलते हैं बच्चे लोग। बताइए हम क्या, कहाँ जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा नहीं है क्या? चुनाव के समय में मुझे बांग्लादेशी कहा गया। आप बताइए, क्या इरफान अंसारी बांग्लादेशी हो सकता है क्या? No, that might have been a political comment. Are you denying that there are no Bangladeshis or illegal Bangladeshis living in India?
नो नो, इन झारखंड देयर इज नो एनी वन बांग्लादेशी। मैं तो चुनौती दिया था बीजेपी को, आप आइए मेरे साथ, मैं ले चलता हूँ, खोजिए, अगर एक भी बांग्लादेशी मिल जाए, एक भी घुसपैठिया मिल जाए, आप जो कहिएगा मैं करने को तैयार हूँ। कहाँ मिला बांग्लादेशी चुनाव के समय में? और आज भी ये लोग बार बार घुसपैठिया हम लोगों को बोलते हैं, हमारे बच्चों का मॉरल डाउन करते हैं, हमारे बच्चे शिक्षा लेना चाहते हैं। मैंने कहा हम आपको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, समाज नहीं, में आपने आगे जो लाएंगे। पढ़ाई लिखाई की बात अपने करी बच्चों उसकी को मैंने लाएंगे तारीफ आगे। भी उसकी ये मैंने कहाँ तारीफ जा भी रहे करी हैं? अंसारी जी, कहाँ बता रहे हैं बट हम लोगों को? इज इट नॉट अ फैक्ट दैट द झारखंड हाई कोर्ट सेट अप अ कमिटी टू लुक इनटू द इश्यू? No, I know that there is a committee, but what is the result? I got the The result. result There is is no that the Bangladeshi. matter is with the Supreme Court. The matter is still pending, so you cannot come to a conclusion that there is not a single illegal Bangladeshi in Jharkhand. But no. If the matter is in court, तो मैं उस पर कुछ कहूंगा नहीं। बट जहां तक मैं जानता हूं, हमारा बॉर्डर है सटा हुआ, हम संथाल परगना से बिलोंग करते हैं, हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी हैं, राहुल गांधी जी का उनको आशीर्वाद है। छोटा स्टेट है, रिच स्टेट है, लेकिन 20 साल भाजपा ने यहाँ एकदम सत्यानाश कर दिया, झारखंड को बर्बाद कर तो दिया। आप आइए, आपने वो कैंपेन स्पीच बना दी, ऐसा लगा जैसे आप सिर्फ वो तालियों के लिए वो सब बात कह रहे हैं, क्योंकि इस भाषा का प्रयोग अभी हम देख रहे हैं। तृणमूल के एक एमएलए वो कह रहे हैं मैं एसिड डाल दूंगा, आप कह रहे हैं मैं कबर खोद दूंगा। आपको समझ में आता है कि ये भाषा उचित नहीं? एक मिनट सर, सुन लीजिए ना। आप तो अगर मेरी बात, मेरा पक्ष आप सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए। बीइंग कांग्रेसी, आई एम द लॉयल फॉर द जनता। नहीं, आप लॉयल रहिए जनता की, आप लॉयल रहिए कांग्रेस के, बट एक देयर कैन बी डिग्निटी इन पॉलिटिकल डिस्कोर्स, इज द पॉइंट आई एम मेकिंग। आप देख लीजिए, बीजेपी ने मेरे चुनाव में क्या नहीं किया। इतना पीएम मोदी जी आए थे, उनके कई मंत्री आए थे, और उन्होंने कहा था कि 23 तारीख को मैं इरफान अंसारी को बांग्ला भेज दूंगा। क्या अच्छा लगता है क्या? इज इट? क्या हम आपको मेरे इतिहास के बारे में मालूम है क्या? भाजपा को हमारे दादा परदादा ने अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके, अंग्रेजों ने उनको गोलियां मार दिया। हम उन परिवार से आते हैं। हमको खराब लगता है जब हमको भाजपा के लोग घुसपैठिया बोलते हैं, खराब लगता है जब हमको बांग्लादेशी बोलते हैं। कौन होता है ये लोग? इनको पावर किसने दे दिया? अंसारी जी, दो बातें हैं। आप डिबेट में बुला लिए हैं, अच्छा लगता है डिबेट में बुलाए, बट आप बीजेपी का सपोर्ट मत कीजिए। नहीं, मैं बीजेपी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। मैं बिल्कुल आपको, मैंने बीजेपी का सपोर्ट बिल्कुल नहीं किया। मैंने कहा कि आप बीजेपी के साथ एक राजनीतिक द्वंद्व करिए। मेरी प्रश्न तो सुन लीजिए, आप देखिए, मेरा प्रश्न सुन लीजिए। आप बीजेपी के साथ, नहीं, मेरा प्रश्न सुन लीजिए। लिसन टू माय क्वेश्चन, देन यू आंसर। पूरा आपको मैं मौका दे रहा हूं। आप बीजेपी के साथ राजनीतिक द्वंद्व में हैं, करिए, कोई समस्या नहीं है। आप किसी बच्चों के प्रोग्राम में थे, और कब्र जैसी भाषा का प्रयोग करना कि हम कब्र गाड़ देंगे, वो मुझे उचित नहीं लगता। उतना पॉइंट मैं बता रहा हूं, उसके बारे में आप बात करिए कि वो क्या उचित था। मैं अपोलॉजी कर रहा हूं। आप मेरी बात सुनिए, मैं एक संस्कारी लड़का हूं। मेरे पिताजी ने झारखंड लिया है, हम झारखंड को संवारना चाहते हैं। दिसम गुरु शिबू सोरेन जी झारखंड, और आप बहुत अच्छी बात कर रहे थे, मुझे अच्छा लगा। आप बात कर रहे थे शिक्षा की, आप बात कर रहे थे कि स्वास्थ्य लोगों का अच्छा रहे, और स्वास्थ्य की बात करते हुए भी बोला कि मैं बीजेपी का स्वास्थ्य, जो नेता उनका स्वास्थ्य खराब कर दूंगा। आपकी बात सुना, मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। हम 1 to 1 है, आपको सच्चाई जाननी चाहिए। झारखंड अलग हुआ, शिबू सोरेन जी ने अलग झारखंड लिया, मेरे पिताजी ने अलग झारखंड लिया, हम लोग उन्हीं के लड़के हैं। हम झारखंड को संवारना चाहते हैं सर, लेकिन भाजपा के आप नीतियों को देखिएगा, इतना अभद्र भाषा, जात पात, हिंदू मुसलमान, एकदम हर जगह जात, यहाँ तक कि हवाई जहाज में जात पात, बिजली में जात पात, घर में जात पात। हवाई जहाज में जात पात तो वैसे उस स्पीच में आप करते सुनाई दे रहे हैं, जिसमें आपने देखा कि एक पायलट को इरफान अंसारी है, तो आपको लगा ये बड़ी अच्छी बात है। वो जात पात तो आप देख रहे थे। पर मेरा एक प्रश्न है, मैं उसमें नहीं जा रहा। मेरा एक प्रश्न है, क्या आप मानते हैं, आपने कहा झारखंड में एक भी बांग्लादेशी नहीं है, पर इन प्रिंसिपल डू यू अग्री दैट द इश्यू ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश इज अ प्रॉब्लम इंडिया इज फेसिंग? सर देखिए सर, द क्वेश्चन इज दैट, मैं ये कहना चाहता हूं, झारखंड में एक भी बांग्लादेशी नहीं है। दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। और मैं बीजेपी को कैसे कह सकते हैं, क्योंकि अभी तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है। झारखंड के हाई कोर्ट को कंसर्न थी, इसलिए तो वो कमेटी बनाई, वो कमेटी काम कर रही है और सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। तो आप अभी कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं कि एक भी नहीं है? सर एक मिनट सुनिए ना, आप बांग्लादेशी से नफरत कर रहे हैं, भाजपा के लोग गाली दे रहे हैं, हम लोग को बांग्लादेशी बोला जा रहा है, हमें घुसपैठिया बोला जा रहा है। तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को, आपने राष्ट्रपति को क्यों आपने शरण दिया? बांग्लादेशी बोला, उस पर मैं ऑब्जेक्ट करूंगा, वो बिल्कुल गलत बात है, पर बांग्लादेशी का मुद्दा है कि नहीं? आपने शरण क्यों दिया है यहाँ पर उनको? वाह, आप भगाए क्यों नहीं आपने उनको? राष्ट्रपति को क्यों भगाया आपने? फिर बात घुमा दी है, इलीगल बांग्लादेशी का मुद्दा है कि नहीं? नहीं सर, यहाँ कोई मुद्दा नहीं है। हम लोग सुनिए, हम सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ,
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म आदिवासी की बात सब कहाँ आ हमारे गई भाई इरफान हैं। अंसारी हम जी? काम कर रहे हैं। बांग्लादेशी आप की मेडिकल बात हो रही है। भारत जैसे एक मेडिकल देश में है, बदलाव मैं कर रहा उसके हूं। नागरिक भारतीय मेडिकल में हैं, changes ला रहा हूं। बांग्लादेश ऐसे एक राहुल जी ने मुल्क कहा है, कि दवाई उसके मत नागरिक लो। बांग्लादेशी हैं, और अगर बिना पासपोर्ट वीसा के इलीगली आएंगे तो इलीगल है। देखिए सर, अगर कोई बांग्लादेशी आ रहा है सर, बिना पासपोर्ट के आ रहा है, तो दिस इज नॉट माय प्रॉब्लम। आपकी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, पर आप स्वीकार करें कि देश की एक समस्या है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बना दिया था 2005-6 में, जब तो कांग्रेस की आपकी सरकार थी केंद्र में। सर एक मिनट सुनिए सर। देश के प्रधानमंत्री कौन है सर? भाजपा के। गृह मंत्री कौन है सर? भाजपा के। रक्षा मंत्री कौन है सर? भाजपा के। तो बॉर्डर में अगर कोई घुसपैठिया आ रहा है, कोई फॉरेनर अगर विदाउट पासपोर्ट घुस रहा है, तो दिस इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपकी जवाबदेही है। मैं जिम्मेवारी आपकी नहीं बना रहा हूं, मैं करना आपकी है। नहीं बता रहा हूं और आप जिम्मेवारी। हम मैं लोगों को सिर्फ गाली देते इतनी हैं। आपसे आप गुहार हम कर लोग रहा हूं कि बोलते आप हैं, तो स्वीकार हमने से- करेंगे कि एक समस्या है। जब सैयदा हमीद कांग्रेस से नाता रखती हैं, वो आसाम जाती हैं, वो कहती हैं कि नहीं, इनको बाहर वापस मत भेजिए। अगर वापस भेजते हैं तो समस्या, नहीं भेजते तो भाई जिम्मेवारी किसकी है? केंद्र सरकार की। तो ये तो वो वाली बात हो गई ना, हेड्स यू विन एंड टेल्स आई विन, हेड्स यू लूज। सर एक मिनट सर, आई एम टॉकिंग विथ यू सर। तो यू आर नॉट ए स्पोक्समैन ऑफ बीजेपी, यू आर मैं बीजेपी की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बांग्लादेशियों के मुद्दे पे हूं इरफान अंसारी साहब। मैंने कहा ना, बीजेपी के नेता ने आपको अगर बांग्लादेशी बोला, बिल्कुल गलत बोला। आप बांग्लादेशी नहीं, आप बिल्कुल भारतीय नागरिक हैं। सर भाजपा के लोग कितना मुझे गाली देते हैं पता है आपको? तो आप स्वीकार सुने करिए नहीं, कि आप आप तो बच्चों चलाएंगे के नहीं, सर। प्रोग्राम में आपके दिमाग में वो 24 इतनी बात सर, थी हैवी एक कि मिनट आपने सुन वो लीजिए, सर। भाजपा पे अपना सुन गुस्सा लीजिए। निकालने के लिए थोड़ा सा पॉलिटिकल डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज की। सर एक मिनट सर, मैं बता रहा हूँ सर, हम लोग एक संस्कारी लड़का हूं मैं, मेरे पिताजी ने झारखंड लिया है, हमको झारखंड को बचाना है सर। मैंने कहा हमारे आम लैंग्वेज है, बोली में है कि कब्र खोद देंगे। मतलब अगर आप हमारा बुरा कीजिएगा तो मैं, मतलब ये गलत सेंटेंस में मत जोड़िए। मेरी भावना किसी को आपकी हर्ट करने भावना के में नहीं समझ है। गया, पर आप स्वीकार करेंगे कि भाषा का प्रयोग बच्चों के सामने उचित नहीं था? नहीं ये बात नहीं है सर, मैं बता रहा हूँ, हम लोग आम बोली चाली है सर झारखंडी, वी आर झारखंडी सर। तो किसी को कवर खोदना मतलब क्या हुआ? मतलब आप गलत कीजिएगा तो मैं रास्ता दिखाऊंगा, दैट्स ऑल। वो आप कह सकते हैं, पर किसी की कबर खोदना, किसी को बोलना एसिड डाल देंगे, तो ये तो उचित नहीं सर। है। एक मिनट से बोलने का मौका दीजिए सर। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी देखिए सर, बिहार गए थे अभी, 65 लाख सर वोटर का नाम काट दिया सर। हम बिहार के बॉर्डर में है सर। अरे तो ऑब्जेक्ट कहां किया है? आंसू बहा रहे हैं सर। ऑब्जेक्ट कहां किया है? 65 लाख वोटर का काट नाम दिया, काटने वाले सर, उसका मुस्लिम है एक सर, दलित है, एफिडेविट इलेक्शन आदिवासी है कमीशन सर। ने सुप्रीम कोर्ट में किया। एक मिनट सर, सुप्रीम एक कोर्ट ने मिनट सर। बोला कि आपके सर, सुन लीजिए बीएलए सर, सारे आप पॉलिटिकल बात नहीं पार्टीज सुन के रहे। हैं, 150 ऑब्जेक्शन आए हैं। सर एक मिनट सर, पर वो मुद्दा हम भटक रहे हैं, मुझे भटकने मत दीजिए, आप भटकाइए मत। ये बताइए एक छोटी सी बात, मैं भारतीय जनता पार्टी ने आपको बांग्लादेशी कहा, मैं उसको बुरा मानता हूं, गलत है, नहीं करना चाहिए। और आपकी भावनाएं आहत हुई, वो भी मैं मानता हूं, वो भी नहीं होनी चाहिए। पर आप इतना तो स्वीकार करेंगे कि झारखंड में ना हो, हालांकि वो भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है, झारखंड में ना हो, पर भारत में बांग्लादेशी मुद्दा है कि नहीं? आप स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है सर। सुनिए सर, हम हेल्दी पॉलिटिक्स करते हैं, हम राहुल जी के सर, हम लोग। मैंने बोला कि आपने शुरुआत अच्छी की, पर ये कबर वाली बात लाना, एसिड डालने वाली बात लाना, तृणमूल के नेता लाए, वो तो स्वीकार करिए कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स अच्छा नहीं है, बच्चों पे असर पड़ता है। सर नहीं सर, मैं सर देखिए यही बात तो मैं कहना चाह रहा हूँ सर। सारे बच्चे हमको बोल रहे थे कि हमारे सर, स्कूल जाता हूँ सर, बच्चियों को बोलता है, लड़के लोग बोल रहे सर ये बांग्लादेशी आ गई, तो क्या बीतता होगा सर बच्चियों पे, आप बताइए सर। नहीं, पर बच्चों पे उसका भी तो असर पड़ता है कि आप कबर खोद देंगे, ऐसी बात करेंगे। इट इज वायलेंट लैंग्वेज। मैंने कहा कि भाजपा अगर अपने बातचीत में थोड़ा संयम नहीं बरते, इससे गलत इंपैक्ट पड़ता है सर। कबर खोदने का मतलब कबर थोड़ी खोद देंगे सर, भाजपा के कबर चली जाएगी। करते हैं कि भाषा थोड़ी बेटर हो सकती थी, बाकी आपने स्पीच अच्छी सर। एक मिनट सर सुनिए ना, आप लाइव बिहार में सर देखिए 65 लाख लोगों का नाम काट दिया सर, वहां के लोग मेरे को वहां ले जा रहे हैं। मैंने आपको बोला कि पॉलिटिकल पार्टीज के बीएलए हैं, जो ब्लॉक लेवल के असिस्टेंट्स हैं, 150 उन्होंने दाखिले किए हैं कि भाई 150 हमें ऑब्जेक्शंस हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप कर क्या रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट को इनफैक्ट बोलना पड़ा कि आप पैरालीगल को लगाइए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ उनको पॉलिटिक्स करनी है। बट अगर फिर हम भटक रहे हैं, आप सिर्फ इतनी बात बोल दीजिए। मैंने बोला कि आपने स्पीच अच्छी दी, एक ये जो आपने बोला कि कबर खोद देंगे, उसके अलावा उतना स्वीकार कर लीजिए, बात खत्म हो जाती है। ठीक है सर, मेरी बात सुनिए। मैं ये कहा, हम लोगों के आम बोली चाली में ये भाषा प्रयोग होता है सर। आप मेरा पूरा भाषण सुनिएगा बच्चों के सामने, निश्चित तौर पे यू शुड अप्रिशिएट माय स्पीच। आप मतलब आप स्वीकार नहीं कर, मैं स्पीच स्वीकार कर रहा हूं, स्पीच के बारे में नहीं बोल रहा हूं। मेरे को अच्छा लगा आपने जब बोला कि बेटी पढ़ाओ, मुझे अच्छा लगा आपने बोला बेटी पढ़ाओ, बट
बेटी पढ़ाते के साथ साथ उनको कबर खोदने जैसा उदाहरण देना उचित है क्या? नहीं सर, मैं देखिए सर, आप कितना, हम तो सर हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि आप कबर खोदने के मुद्दे पर आप पूरा नेशनल इशू बना दिए। नहीं, नेशनल इशू बात नहीं है, तृणमूल का हम देख रहे हैं, आप बिहार की बात कर रहे हैं, 65 लाख वाली बिहार में देखिए क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री की लेट माता जी को इस तरह से अपशब्द प्रयोग करते हैं। मैं पॉलिटिकल डिस्कोर्स की बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने स्टोरी उठाई कि आप अगर कांग्रेस के नेता हैं, स्वीकार करेंगे तो देश को अच्छा लगेगा कि कांग्रेस में कुछ लोग हैं जो स्वीकार करते हैं कि भाई पॉलिटिकल डिस्कोर्स अच्छा होना चाहिए। सर देखिए, मैंने कहा ना सर, हम लोग संस्कारी आदमी हैं सर। हम लोग राहुल जी के सर, हम लोग राहुल गांधी जी के सर सिपाही हैं। राहुल जी ने हम लोग को काम करना सिखाया है। तो राहुल जी तो माफी मांगते नहीं हैं और किसी बिल्कुल रिग्रेट एक्सप्रेस नहीं करते हैं। सर राहुल जी सर, गलत बात बोली प्रधानमंत्री की, वोटर अधिकार यात्रा में 6 दिन उनके साथ था सर। मैं सच बता रहा हूँ, आप चला दीजिएगा सर। उनसे अच्छा इंसान, उनसे अच्छा नॉलेज। राहुल गांधी की क्या बात हो रही है? ये बात हो रही है पॉलिटिकल डिस्कोर्स की। अगर राहुल गांधी अच्छा करते हैं तो अच्छी बात है, और अभी दिख तो नहीं रहा अच्छा करते हुए, क्योंकि आप जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तृणमूल के नेता जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कांग्रेस की हमने रैली में देखा क्या हुआ बिहार में, तो ऑब्वियसली थोड़ा आप स्वीकार कर रहे हैं ना कि चलता है इतना। आप कह दीजिए इतना चलता है तो मान लेंगे। अनर्थ कर रहा है भाजपा के लोग यहाँ झारखंड में सर, सत्ता से बेदखल हुआ है, क्या कुछ नहीं कर, इतना साजिश करता है ये लोग, इतना निम्न स्तर तक राजनीति करता है ये लोग। आपको तो आगे आना चाहिए, आपको शाबाशी देना चाहिए मुझे, आपको भाजपा को डिबेट करना चाहिए हमारे सामने बैठा के। आप इरफान अंसारी जी, बीच में आप एक बार बोले भाषा के लिए मैं अपोलोजाइज करता हूं, पर अब आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं भाजपा की। मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। देखिए, मैं तो संस्कारी लड़का हूं सर। मैं, आप देखिएगा, झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था मैंने बदल दिया है और भाजपा के लोगों का इलाज कर रहा हूं। कोई मुद्दा नहीं, फिर भी मुद्दा खोज के मुद्दा लाता है सर। हेल्थ के सेक्टर में मुद्दा लाता है। ये तो आपने बोला है, माइक पे बोला है, कैमरा पे बोला है, भाजपा कहां से ले आई मुद्दा इसमें? सर देखिए सर, आप तो नहीं, आप तो सर दिल्ली में है सर, आप लोग बड़े लोग हैं सर, हम लोग गरीब आदमी हैं। कोई बड़े लोग कहना चाहता हूं सर, सब सामने दिखता है आजकल, तो सब दिख जाता है। आप कोई कैमरा बना रहा होता है, किसी ने वीडियो बनाया आपका, पर आप स्वीकार नहीं करेंगे। ये बात हो गई सर, ये बात हो गई कि हमने बोल दिया, कोई बात नहीं, आप उसको स्वीकार करें। का भाषा है सर, कवर खोद देना। मैं भाजपा कवर कैसे खोद सकता हूँ सर? सबसे पावर, अभी तो ट्रम्प से भी ज्यादा पावरफुल हमारे भाजपा के लोग हैं सर। मैं उससे कवर खोज सकता हूँ क्या सर? तो फिर बच्चों के सामने नहीं बोलते, इतना तो स्वीकार कर लीजिए। ट्रम्प भी डर रहा है सर भाजपा से। बच्चों के सामने नहीं बोलते, इतना तो स्वीकार कर लीजिए। एक छोटा सा सिपाही हूँ मैं सर। चलिए सर, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच इरफान अंसारी जी, बात करके अच्छा लगा। बाल बच्चे पढ़े, मैं झारखंड आगे आए सर। अगर सर आपको आप स्वीकार करते तो और भी अच्छा लगता। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ओके, चलिए। Fair enough. In fact, it seems there is something with the Congress party, because you have Irfan Ansari in Jharkhand saying this is part of our culture. Though we are very cultured, but this language is also part of culture. And then we have down south in Karnataka, where none other than Congress President Mallikarjun Kharge, he was engaging with the locals there, and when some farmers came and complained about crop loss, he slammed them. And we have a situation where he's telling them that what of you, even my crops have got destroyed. You are working on, these farmers were complaining about the loss of their pigeon pea crop, and then Mallikarjun Kharge asked, how much of your crop is spoiled? Yours may have 4 acres, but mine is 40 acres. So is this arrogance or what? Let's listen exactly to how Mallikarjun Kharge engaged with the farmers. ನೋಡಪ್ಪ, ನೀ ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಬಿತ್ತಿದ್ದಿ? 4 ಎಕರೆ. ನಂದು 40 ಎಕರೆ. ನಂದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ನನಗೆ ನೀ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದೇನು 6 ಆಡದವಳು ಮುಂದೆ 3 ಆಡದವಳು ಮುಂದೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತು, ಗೊತ್ತದ. ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಬರಬೇಡ. ನನಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ. ಹೆಸರು ಹೋಗ್ಯದ, ಉದ್ದು ಹೋಗ್ಯದ, ತೊಗರಿ ಹೋಗ್ಯದ. ನೀ ಏನು ಸಸ್ಟೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಸಸ್ಟೇನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಏರಿಯಾದಾಗ ಬಿತ್ತಿ ಓಕೆ. ಮೋದಿ ಶಾಕ್ ಕೇಳಿ ತೊಗರಿ. Right, Nagendra Babu, our reporter, joins us live from Bengaluru on this. Nagendra, Mallikarjun Kharge does not seem very happy. Is he not happy about his own crop? Is he not happy about the fact that Siddaramaiah government has not done enough to salvage the situation? Or was he just really unhappy with the farmers coming and complaining to him because it's a Congress government there?
यस अभिषेक, देखिए एक फार्मर बंदा आके उसका फसल खराब हुआ है बोल के उसको उसका सामने बोलने के लिए जाता है। वो समय में हम लोग अभी देखा मल्लिकार्जुन खड़गे एक बात बोलता है, हमारा पास 40 एकड़ का फसल खराब हो चुका है, आप कल केवल 4 एकड़ का बात कर रहे हो बोल के एक उसके ऊपर गुस्सा कर देता है। वही समय में और एक बात बोलता है मल्लिकार्जुन खड़गे, 6 बच्चा पैदा करने वाला सामने आके 3 बच्चा पैदा किया वाला बात कर रहे हैं, क्यों देखिए ऐसा बोल के ऐसा कॉमेडी भी कर देते हैं। देखिए वही टाइम पे उन्होंने बोलता है नहीं सर हमका बहुत मुश्किल हो रहा है, हम लोग ज़्यादा पैसा किसी के पास लेके अभी हम लोग ने फसल का इंतज़ाम कर रहा था, लेकिन फसल पूरा खराब हो चुका है, उसके लिए एक परिहार तो देना पड़ता है, आप बोल सकते बोल के ऐसा रिक्वेस्ट करने के लिए वो लड़का आया था। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे और एक बात बोलता है, जाके आपने अमित शाह और प्रधानी मोदी को बोल दो बोल के वो बंदा को बोलता है मल्लिकार्जुन खड़गे। वही टाइम पे वो लड़का ने बोलता है, फार्मर लड़का ने बोलता है सर उसका टाइम पे भी हुआ था, पिछले सेम टाइम पे भी हुआ था, लेकिन अभी तक हमको उसका खराब हुआ है, उसका पैसा अभी तक नहीं मिला है बोल के उसका दुख बोलने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का सामने आया था। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे उसके ऊपर गुस्सा करके मेरा 40 एकड़ का फसल खराब हो चुका है बोल के उसको वही और एक बात बोलता है अभिषेक, ये पब्लिसिटी लेने के लिए आप ऐसा इधर मत आना बोल के उसको गाली देके उसको बाहर भेजने का प्रयत्न करता है अभिषेक। एक बात बताइए कि ये जो नागेंद्र आप कह रहे थे कि उसने बोला कि अमित शाह से बात करो या केंद्र सरकार से बात करो, तो इसमें केंद्र सरकार बीच में कैसे आ गई? ये तो बेंगलुरु में तो कांग्रेस की सरकार है सिद्धारमैया की। यस एब्सोल्युटली राइट अभिषेक, देखिए अभी कर्नाटका सरकार में सब कुछ अच्छा नहीं बोल के सब लोग बोल रहे हैं। अभी देखिए एक खाली एक फार्मर का दुख नहीं है, बहुत सारा फार्मर्स अभी उन लोगों का फसल खराब होके वो लोग अभी रास्ते पे आ चुका है, उसका फसल को भी अच्छा रेट भी नहीं मिल रहा है, वो अभी पूरा रास्ते में डाल के वो प्रोटेस्ट भी करने के लिए बहुत सारा ऐसा ही हो रहा था। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उसका फंड रिलीज करना है, देखिए उसके पास स्टेट गवर्नमेंट के पास फंड है क्या नहीं उसको तो गवर्नमेंट अभी बता रहे हैं, लेकिन फार्मर लोगों को फसल खराब हो रहा है। अभी देखिए बहुत सारा बारिश भी हो रहा है, उसकी वजह से बहुत सारा फसल भी खराब हो रहा है। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट उसका रिलीफ फंड देना है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे रहा है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के पास वो लड़का जाके उसके पास न्याय मिलता है बोल के उसके पास बोलने को गए, तो वो गुस्सा करके पब्लिसिटी मत लेना इधर आके बोल के उसको गुस्सा में गाली देके उसको भेजने का ट्राई करता है अभिषेक। Right, thank you so much, Nagendra. Clearly, a case of political haughtiness there from the Congress president, the tone and tenor with which he was speaking and talking down to the farmers there who are already in a lot of distress. We'll, of course, bring more on this story as it develops. This is just a while back that this episode happened in Karnataka. But moving on for now, and to Punjab, where in a major breakthrough against organized crime amidst the ongoing drive to make Punjab a safe and secure state as per directions of the Chief Minister of the state, Police's anti-gangster task force has apprehended an associate of foreign-based gangster Goldie Brar and recovered 5.32 bore pistols along with 10 live cartridges from their possession. These are pictures released by Punjab Police, and essentially what we are seeing is that crackdown on gangsters continues. This is not the first time in the recent past that we are seeing this kind of discovery. In fact, along with this recovery, one aide of Goldie Brar has been nabbed, and we are seeing crackdown happening on the Lawrence Bishnoi gang, the Goldie Brar gang, many of them now in Canada and other foreign shores. And it seems that there is coordinated work happening between the Punjab Police and the central agencies to make sure that this menace of gangsters is uprooted. For more on this, Lalit Sharma joins us live from Chandigarh, our correspondent. Lalit, what more can you share about this crackdown? Is this part of an ongoing exercise to make sure that Punjab is drugs-free and
mafia free, or and who's this person who has been arrested? What are his criminal antecedents? Abhishek ji, if we talk about it's a major breakthrough and a crackdown which the Punjab Anti-Gangster Task Force have got. A close aide of Goldie Brar, a notorious gangster who is right now residing in Canada. And his close aide, Baljinder Singh, alias Ranch, has been apprehended and has been arrested by the Anti-Gangster Task Force. Police have recovered 5.32 bore pistols and 10 live cartridges. As per the preliminary investigation from the police, right now what we are also learning that these weapons were being procured through the Goldie Brar's associate Malkeet Singh. And he was the one who provided these weapons to Baljinder Singh, alias Ranch, who has been apprehended by the Anti-Gangster Task Force. So it's a major breakthrough. Apart from that, what we are also learning that there has been several cases which have been registered against Baljinder Singh under the NDPS Act, and the motive behind was to somehow to destroy the peace and harmony of the state. So it's a major breakthrough which the anti-gangster task force have got. This is not for the first time. In the recent past also, the drive which the Punjab police is already taking, whether it's against the drugs or against the illegal weapon, there has been number of recoveries in the past couple of months. Right. So it's a major breakthrough as the motive behind was to somehow spread distress in the state. So before that, this close aide of Goldie Brar, Baljinder Singh alias Ranch, has been arrested by the anti-gangster task force. All Back right. to the studio. Baljinder Singh there, and a major crackdown happening in Punjab. Thank you so much, Lalit, for joining us. And with that, we have to slip into a short break. And coming up on the other side of a short break, Get Me Right. This week on Get Me Right, is the India-United States relationship on the rocks and beyond remedy? Or is there hope that it could still be redeemed? Also, the post-Article 370 Naya Kashmir is taking strong strides in busting the long-held myths of Pakistan and their allies in India, the Tukre gang. A report debunks the unmarked graves theory. This weekend, Saturday and Sunday, only on Republic TV.